है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है मां शारदे की एक रंगीन, एक ऊर्जावान वंदना। Respected President Mr. Ashok Sharma, Chief District Education Officer of Junjunu, esteemed presiding guest Mr. Hari Singh Dayal, DSP of Junjunu, Rural Honorable Patans Mr. Ramjilal and Captain Jaidev Singh, respected members and managing directors, distinguished guests, presented parents, dedicated colleagues and my beloved students. It is with great honor and heartfelt pride that I stand before you this morning. I am Miss Preeti, Principal of BDR Public School, on the behalf of entire BDR family. I esteemed a warm joy and inspiration of this special occasion. We feel proudly honored by gracious presence of our chief guest, Mr. Rajendra Babuji, Honorable MLA of Junjunu. Sir, your commitment to public service and welfare of society stand as a source of inspiration for your young learners. We are truly grateful for your encouragement and support. And I
Esteemed, my sincere welcome to our respected President Mr. Ashok Sarmaji, Chief District Educational Officer of Junjunu. Sir, your visionary leadership and continuous support to the strength of education system, motivational institutions like ours to strive for the academic excellence and holistic development. We are equally privileged to have with us our esteemed president guest, Mr. Hari Singh Dayalji sir. Your esteemed service in administration, governance and law enforces, amplifies integrity, discipline, dedication, values, we energy and desire to instill our students. I also respectfully acknowledge our honorable patrons, Mr. Ramdilal sir and Mr. Jaydev Singh, whose wisdom, experience and social commitment have always been a guiding for our BDR family. Today's celebration is not merely showcase of cultural performance, it is the reflection of our school, holistic growth of our students. At BDR Public School, we believe that education extends for beyond the textbook. It nurtures the character, creativity, confidence and compassion of our students. The program you are about to the witness of the result of our hard work, enthusiasm and dedication of our students, guide us truly by our teachers. To take this opportunity to express my heartfelt gratitude to our visionary managing director, Dr. Arvind sir, Mr. Ajay sir and Mr. Pushpaji madam, and for their unwavering support, guidance and faith of our mission to provide equal education. My sincere appreciation goes to our teachers, staff members and beyond the success of our parents and students in the behalf of BDR family. Thank you. Have a nice day. Thank you very much, ma'am. What a terrific and welcome speech by the principal of BDR Public School. I want to say something about the ma'am. बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। आप जैसी महिला शक्ति बनकर जब निकलती है तो इस दुनिया का इतिहास बदल देती है। एक बार जोरदार तालियां तमाम महिला शक्ति के लिए जो मां शारदे के इस पावन प्रांगण में हमारे सामने विराजित है और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई हैं। अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए मैं अरुण जी से निवेदन करता हूं। नेक्स्ट वेलकम डांस।
करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में, देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में, मिलके करें सबका दिल से अब आपके सामने क्लास एलकेजी जो सबसे छोटी क्लास है उसके नन्हे से बालक जच्चे चौधरी डांस प्रोग्राम लेकर के आपके सामने उपस्थित है। रंग साफा धोलो वेश चचा चौधरी पेश, रंग साफा धोलो वेश चचा चौधरी पढ़ के फेस, कानम मुर्गा बड़ा सोनो चमके तेज, रंग साफा धोलो वेश चचा चौधरी पढ़ के फेस। हाथ में घड़ियां मुंह में पान भलो चौधरी का बड़ी शान, हाथ में घड़ियां मुंह में पान भलो चौधरी का बड़ी शान, रुपया न समझे रेत को ढेर चल चौधरी भाई बन ले, रंग साफा धोलो वेश चचा चौधरी पढ़ के फेस। जोरदार तालियां। तेजरो भगत चौधरी साचो धरती में पूजे उगड़े सोनो, तेजरो भगत चौधरी साचो धरती में पूजे उगड़े सोनो, राम नाम में घट में राखे, राम नाम में सब कुछ माने, रंग साफा धोलो वेश चचा चौधरी पढ़ के फेस। फैन गौतम थारी जबरा दिलेरी, धन्य धराओ धोरा रो देश, फैन गौतम थारी जबरा दिलेरी, धन्य धराओ धोरा रो देश।
चौधरी घर घर वायरल रील चले जी देश विदेश चचा चौधरी पर फेस मरोड़ा काना में मुर्गा गले में सोना चमके तेज बचरंग साफ चचा चौधरी पर फेस। बहुत ही जिन जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, पहला स्थान क्लास में प्राप्त किया है, उन विद्यार्थियों के नाम एक एक करके बोले जा रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राजेंद्र जी भामू सर से और श्रीमान अशोक जी शर्मा सीडीओ साहब से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे इन विद्यार्थियों को मोमेंटो भेंट करें। सुनील कुमार क्लास यूकेजी, फर्स्ट क्लास से सौम्या, सुरेश कुमार और रेस्पेक्टेड सर, इनके गार्जियन अपने बीच में पधारे हुए हैं, उनका तहे और अभिभावकों से भी मेरा विनम्र और धन्यवाद सर। अब क्लास 8th के विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट रैंक के साथ में अंक प्राप्त किए हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। नेक्स्ट कमिंग आर्यन कृष्णिया आदित्य जी मंच पर आए और प्रथम स्थान के लिए अपना मोमेंटो प्राप्त करें। आर्यन कृष्णिया। नेक्स्ट आयुषी कुमारी डॉक्टर होप आशीष जी, वो भी मंच पे आए। दीक्षा बसेरा, राकेश कुमार जी बसेरा, दीक्षा बसेरा, आप भी तैयार रहे बच्चे। नेक्स्ट दिविजा कन्नीराम जी बिदारनिया, आप भी तैयार रहे। नेक्स्ट हर्षित भूरिया, कुलदीप जी भूरिया। सम्मानित अभिभावक कृपया साथ में आए, आपसे भी अनुरोध है। नेक्स्ट मानसी डॉक्टर ऑफ संदीप कुमार, रैंक फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट दिव्या डॉक्टर ऑफ रमेश जी। अभिभावक यहां उपस्थित हो तो आए। थैंक यू वेरी मच सर। जोरदार तालियां इनके लिए। इन्होंने अपने सम्मानित मंच पे जो भी अतिथि थे उन सब का परिचय हो चुका है, तो सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसके बाद यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावक जो वर्ष भर इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और जब बच्चे अपना रिजल्ट देते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो इस तेज ठंड में भी यहाँ पहुँचे, एक बार उनका भी बहुत जोरदार भव्य तहे दिल से स्वागत मैं करता हूँ। उसके बाद मेरी संपूर्ण पीडीआर टीम का जो यहाँ इस कार्यक्रम को संचालन कर रही है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और बच्चों को ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार, ताकि वो इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाएं। मैं स्वागत के साथ साथ कुछ बातें अभिभावकों से भी शेयर करना चाहूँगा कि शिक्षा प्रणाली में दिन ब दिन परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं हम भी संस्कार, सभ्यता और जो बच्चों का सर्वांगीण विकास है उसमें भटक रहे हैं। बहुत पहले जब गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी
उसमें समर्पण और निर्माण की भावना हुआ करती थी। यानी दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब गुरुकुल हुआ करते थे तो बच्चों को समर्पण और निर्माण की चीजें सिखाई जाती थी। उसके बाद प्रणाली विद्यालयों की आई तो विद्यालयों में भी अनुशासन और निर्माण दोनों सिखाए जाते थे। सर्जन भी सिखाया जाता था, अनुशासन भी सिखाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस भागदौड़ में हम विद्यालयों से भटक के एक अन्य फील्ड की ओर दौड़ रहे हैं जिसका नाम कोचिंग हो गया है। कोचिंग की आवश्यकता जरूर होती है बच्चों को, लेकिन वो तब होती है जब बच्चों का मस्तिष्क पूर्ण से डेवलप हो जाए। लेकिन अब स्थिति ये आ रही है कि चौथी पांचवी के बाद यानी चौथी क्लास से बच्चों को कोचिंग में डाल दिया जाता है, चाहे वो सैनिक मिलिट्री की हो चाहे IIT की हो। उस चीज में सिर्फ और सिर्फ एक भावना पैदा की जाती है कि मुझे दौड़ना है और वो दौड़ पूरी करनी है। इसके अलावा ना कोई उनके संस्कार डेवलप होते हैं, ना उनकी भावनाएं जेस्चर्स वगैरह होते हैं वो डेवलप होते हैं, ना उनको निर्माण सिखाया जाता, ना उनको प्रयोग सिखाया जाता। फिर भी अकेले बच्चे इसके दोषी नहीं है, अभिभावक भी उतने ही दोषी हैं कि उस दौड़ में सबको शामिल कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठे तमाम अभिभावकों से एक अनुरोध करता हूँ कि जितनी अच्छी स्कूलिंग में बच्चों को संस्कार, उनका निर्माण और ये चीजें सिखाई जाती है, कभी भी कोचिंगों में नहीं सिखाई जाती। कोचिंगों में वो सिस्टम ही नहीं है। गेट खुलता है, एंट्री होती है, टीचर आता है, रेडियो की तरह पढ़ा के चला जाता है। ये भी पता नहीं चलता कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, फिर भी लोग उस तरफ भाग रहे हैं। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कम से कम 12th तक बच्चों को स्कूलिंग की शिक्षा दिलाएं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उनको अति अनुशासन की भी आवश्यकता नहीं होती, भागदौड़ की भी आवश्यकता नहीं है। स्कूलों में सख्त जरूरत है जिससे हम भटक रहे हैं उस दौड़ में शामिल कर रहे हैं। अगर वो सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे तो अगर वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे तो दैनिक जीवन में उनका यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बच्चे स्ट्रेस में चले जाएंगे, काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो स्कूलिंग है, अच्छी स्कूलिंग, उसको अपनाएं और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। धन्यवाद, थैंक यू। Stretching its legs very seriously. We have to understand what is true education. We have to understand the thing which is very important for our siblings, for our child. And this school is the symbol of excellence. I know it very well. I have worked here and I assure you, you will never disappoint. अरविंद सर ने बहुत अच्छा बताया कि विद्यार्थी का आपने बचपन छीन लिया, आपने हमने सबने विद्यार्थियों का बचपन छीन लिया। एक तो सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, खाना नहीं खा रहा चल मोबाइल। अरे क्या है, बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए मौका दो बच्चे को। कोई कोचिंग के चक्कर में उनको कोटा सीकर डाल रहे हैं। अरे समझो बच्चों को, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। और अब आगे की प्रस्तुति के लिए राजस्थान ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी। अल्लाह क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हर शरारत सब जानू मैं तोहरी, हर सले उन भंगा दी मैं कर लगे। मर जागी तो कभी मैं चंदा भारी चांदनी मन मन के बाद एक सीरे झुम 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 हमारे जागी तो कभी मैं चंदा भारी चांदनी मन के बाद एक सीरे झुम 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 झुम।
जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही उड़ान ये बच्चियां जब एक दिन अपने सफलता के चरमों शिखर को छुएंगी और पीडीआर परिवार का और इस समाज का, हमारे देश का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगी, तब हमें इन पर गर्व होगा। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए घूमर सॉन्ग क्लास 6 की लड़कियां आपके सामने उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करते हैं। ये बालकों ने हाथा जुड़ लो पेरी पैसा नैना काजल सारो राज जो धाड़ारी चूनर माथे सुकरो सूरज उग्यो आज सज दज गोरी घूमर गाले सारो जग मुस्कावे आज सारो जग मुस्कावे आज पायल बाजनी जुड़ लो चम 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 के साहा में मेहंदी राजनी माथे साजे बोरड़ो पैरा में पायल बाजनी जुड़ लो चम 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 के साहा में मेहंदी राजनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रम बाई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रम बाई सा चूनरी मंगवाई पीपे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में देव जी नाम थारो रचवायो जी हीरे कारण रावण घड़ो सजाई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रम बाई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रम बाई सा
बाहरों को होश आ जाए और तालियां बजाओ तो ऐसे बजाओ कि तमाम कलाकारों को जोश आ जाए। आपकी तालियां ही इन कलाकारों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा इनाम है। आपकी इन्हीं तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं बॉलीवुड एंड पंजाबी डांस के लिए क्लास 8 के गर्ल्स आपके सामने उपस्थित है। टपके लार शहर दी गलियां तोड़न चली सी मैं कलियां। ओ टपके लार शहर दी गलियां तोड़न चली सी मैं कलियां। ओन तकिया ते मैं खो गई, खुल जा सम सम हो गई। ऐ कोई जा टोड़ा जा कोई टोंग मुंडिया वे तेरी लच्छी नाप गया लौंग मुंडिया। आज लच्छी नाप गया लौंग मुंडिया वे तेरी लच्छी नाप गया लौंग मुंडिया। शकीन पिछे ला लिया बड़ी उडारिया सिला लिया नी तू दिल दे फ्रेम च जड़ा लिया। एक ख्वाहिश प्यार सोनिया मैं तेरे नाल रखना मैं पाके। नखरा दी गली विचों सोनिए तू लगदी पजे पछड़ के। और कच दी गलासी वांगू सोनिया मैं रख दे मेरी खड़का के। नखरा दी गली विचों सोनिए तू लगदी पजे पछड़ के। द बॉस सूट पोड़ो हट गई तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे। सूट पोड़ो हट गई तू पापलीन दे गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे। किवें कच मोती तेरा सच्चा हो गया नी इत्थे जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया। जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया। जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया। दुनिया में इससे बड़ा ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो समाज के सपनों को और स्वयं के अपने सपनों को पूरा कर सको। इस विद्यालय के अंदर हमेशा कुछ और कुछ नई बातें सिखाई जाती हैं। मैं अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने जो एक संक्षिप्त उद्बोधन दिया और गुरुकुल शिक्षा पद्धति अनुशासन और संस्कार की बात की, मैं कह रहा हूँ कि उनकी बहुत ही शख्सियत की बातों में सारा सारांश छिपा हुआ था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस संस्था में सभी तरह के संस्कारों का और एक व्यवहारिक शिक्षा का वातावरण है, तो एक अच्छी संस्थान है। इसके लिए मैं पूरा जो भी ये प्रबंधन है इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है और शिक्षक और शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आज देश में समय निरंतर बहुत तेजी से बदल रहा है, तो सभी से मेरा आग्रह है कि सभी अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रखें और दुनिया और देश में जो नया जो हो रहा है उसको शीघ्र ग्रहण करें।
क्योंकि जब तक कि आप इस टेक्नोलॉजी के अनुकूल अपने आप को नहीं ढालोगे तो ये मानना चाहिए कि अपना जीवन सही नहीं है। अगर आपके जीवन में सब कुछ स्थिर चल रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि कुछ अच्छा नहीं है। हर समय बदलाव होना चाहिए। आप जिस किसी टीम में हो उस टीम के एक्टिव प्लेयर होना चाहिए और उसके अलावा ये भी मन में होना चाहिए कि आप अपनी जिस टीम के प्लेयर हैं उसके लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। शिक्षा समाज की और देश की प्रगति का आधार है। शिक्षा से ही सारे बदलाव संभव है जो समाज और देश जो देखना चाहता है। एक गुरु के प्रति भी मेरा बच्चों से आग्रह है कि उनके मन में गुरु के प्रति हमेशा आदर, सम्मान और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। गुरु एक तरह से प्राचीन काल से श्रद्धा और शक्ति के स्रोत रहे हैं। हमेशा गुरु के प्रति आदर का भाव बच्चों के मन में होना चाहिए। कभी तो कहा गया है कि गुरु है वो रिटायर्ड होने के बाद में भी एक तरह से सेवानिवृत्त नहीं होता है। वो अपने आप को राष्ट्र की सेवा के लिए हर समय समर्पित भाव से सेवा करता है। कभी गुरु की तुलना दीपक से की गई है कि वो उस तरह से प्रकाश स्वयं जलकर सारी दुनिया को प्रकाश देता है। विद्यार्थी का जीवन एक योद्धा का जीवन है। विद्यार्थी को चाहिए कि कठिन परिश्रम और साथ से वो मेहनत करे। अगर वो दृढ़ निश्चय से मेहनत करेगा तो लक्ष्य है वो हासिल होगा और सफलताएं उनका पैर चूमेगी। हमेशा उसको लगन से काम करना चाहिए। कभी भी निराशा का उसके जीवन में भाव नहीं आना चाहिए। एक विद्यार्थी को हमेशा टारगेटेड एजुकेशन लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जब कभी अपन जैसे किसी मकान का भी निर्माण करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट पहले तैयार करते हैं। तो बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि वो अपने जीवन में जो लक्ष्य हासिल करना है उसको पहले से डिसाइड करके लक्ष्य की तरफ बढ़े। और लक्ष्य की तरफ अगर बढ़ोगे और लक्ष्य आपकी ओर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप भी आगे भविष्य में कामयाबी हासिल करोगे और ये देश भी आगे जाएगा। मैं तो युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए और आप वो कड़ी है जो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का सबसे बड़ा जिम्मा आप लोग हो। युवा अपने देश की एक पूंजी है। जैसा कि हमारे निदेशक महोदय अरविंद जी ने बताया कि कोचिंग की ओर आकर्षण जो बढ़ रहा है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोचिंग हमें एक रोबोट बना देते हैं जो भारतीय संस्कृति और जो व्यवहारिकता है और जो सारी जो संस्कारिक बातें हैं उनसे दूर हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग से अपने को बचाव में ही रहना चाहिए। दूसरा, आजकल की जो शिक्षा है उसमें ऐसी बात नहीं है, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन डिग्री की बजाय आज टैलेंट की आवश्यकता है। टैलेंट ओरिएंटेड शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए डिग्रियों की बजाय। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इस देश में 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, अगर उसको मन से अगर अपन लागू करेंगे तो भारत में एक ज्ञान के अंदर भी वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा ही नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की तरफ ले जाने का मार्ग भी है और समरसता आधारित शिक्षा के साथ साथ समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए समस्या रहित कौशल की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था और देश के लोगों ने जब तिरंगा थामा था अपने हाथ में तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अब समय आ गया है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू करनी चाहिए। लेकिन उस समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया अब्राहम लिंकन की सरोदे हमारे विनोबा भावे की। विनोबा भावे जी ने कहा था कि अब गुरुकुल शिक्षा पद्धति का समय आ गया है, लेकिन उस समय किसी ने नहीं ध्यान दिया। लेकिन आज एक नितांत आवश्यकता है कि हमें नई शिक्षा नीति को अपने मन से लागू करना चाहिए। उस समय गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समय संस्कार बच्चों को संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी और नाना नानी से मिल जाते थे, लेकिन
जब लॉर्ड वायसराय यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी सारी शिक्षा नीति को छत-विछत कर दिया और देश को गुलामी में जंजीरों में जकड़ने के लिए सारी हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था थी उसको खराब कर दिया। तो मैं मित्रों आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा और यहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अभी जो नई शिक्षा नीति है उसको मन से लागू करें। इसके अलावा हमारा देश युवाओं का देश है। बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ की जो जनरेशन है वो 35% जनरेशन युवाओं की है। युवा हमारे देश की पूंजी है। तो हमारे तकनीकी दृष्टि से भारत बहुत मजबूत है, लेकिन तकनीकी के अलावा नैतिक और बौद्धिक शिक्षा भी दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि स्कूल का जो वातावरण है उसमें स्वच्छंद रूप से बच्चे को बिना रटाफिकेशन के एक स्वच्छंद वातावरण में एजुकेशन दें। उन पे किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को हर जगह रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं करें। बच्चे की खुद की भी अपनी खुद की शक्तियाँ हैं और उसको शक्ति को काम में लेने दें। आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे हैं जिनमें सांस्कृतिक दृष्टि से आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है या उनकी हॉबी है। कुछ लोग हैं जो खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विज्ञान चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को उसकी इच्छा का सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। उसको उसके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखारने का काम करें, तराशने का काम करें। उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक आपको क्रिकेट के मैदान का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जब स्टेडियम के जो दर्शक बैठे होते हैं तो जो क्रिकेट का बैट्समैन आता है उससे हमेशा एक ही मांग करते हैं कि चौका लगे और छक्का लगे, लेकिन बैट्समैन कभी उनकी जो तेज आवाज होती है और जो तालियां बजती है उनकी ओर ध्यान नहीं होता और उसका लक्ष्य सिर्फ बॉल है, उसको खेलना होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य जो लेके चलो उसी पे रहो। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको पता होगा, 10th क्लास में सचिन तेंदुलकर फेल हो गए थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने और सचिन ने अपना कभी जज्बा और जुनून जो क्रिकेट के प्रति था उसको कभी कम नहीं किया और एक विश्व के रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी बने। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालें और उनको अपनी शक्तियों का प्रयोग करने दें। आज के इस स्कूल के प्रांगण में जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी, मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। और वैसे तो सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो भी प्रस्तुतियाँ दी बड़ी उत्कृष्ट स्तर की थी, लेकिन चौधरी जी की जो टीम के द्वारा जो प्रस्तुति थी वो बहुत ही सराहनीय थी। मैं उन छोटे छोटे जो LKG के बच्चे थे उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूं कि वो जो प्रस्तुति थी मेरे हिसाब से सभी दर्शकों को मनमोहक थी। और आप लोगों ने मुझे इस संस्था में बुलाया, मान सम्मान दिया, आप लोगों के बीच दो बात कहने का मौका मिला और प्रबंधन की मैं बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि यहाँ का जो शैक्षणिक वातावरण है बहुत अच्छा है और यहाँ जो अभिभावक आए हैं उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्कूल चुनी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।